और आपको जस्ट बताना है कि आपको मेरा वन नोट दिख रहा है क्या? आर एबल टू सी माई वन Yes, sir. नोट नोट? या Yes, sir. या तो ये मेरे वन नोट के नोट्स हैं। तो क्या है ना, ये सब काउंटर क्या होता है ये सब मुझे पढ़ाना पड़ा, बिकॉज मैंने जब पढ़ाया था बैचेस को उस टाइम पे थियरी वाले सर जो थे, गावड़े सर थे, वो काउंटर तक पहुंचे ही नहीं थे। इसकी वजह से मुझे से पढ़ाना पड़ा। तो क्या करेंगे, फटाफट है ना, एक 5 मिनट से भी लेस टाइम में एक काउंटर का पढ़ लेंगे और उसका डायरेक्टली जंप करेंगे आईसी के पिन आउट डायग्राम में, और देखेंगे कि ये जो पिन आउट डायग्राम है आईसी का, डेटा शीट का, उसको मल्टीसिम में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो देर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द pin numbers and pin names given in data sheet and the pin names which the multisim tool has given to its database of components. तो हम वन टू वन देखेंगे कि भाई अगर हमने पेपर पे काउंटर के आउटपुट को Q3 बोला है, तो फिर मल्टीसिम के अंदर जो आईसी है 7490 वो उसी चीज को QD बोलता है। जिसको हम Q3 टू Q0 बोलते हैं, उसी को टूल बोलता है QD QC QB QA। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वी नीड टू नो द वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन the pin names shown in the data sheet of the IC and the pin names which are used by the multisim tool, because we cannot change the pin names there. Okay, fine, let's begin. So the assignment was study of counter ICs. आपको दिख रहा है ना क्लियरली? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. गुड, चलो बातें नहीं करेंगे, वन वे। स्टडी ऑफ काउंटर आईसीज में दो पार्ट थे। पार्ट वन वॉज 74LS90 and 74LS93, और पार्ट टू वॉज 74191। नाउ 90, 93, 191, all three of them are actually counters. Got the point? और एक इसके अंदर है 74190 भी आता है मेरे हिसाब से। सो 7490, 7493, 190, 191, all of them are counters, but सिर्फ they are little different kind of counter. For example 7490 देखेंगे तो आगे आएगा अभी। तो what is 74LS90? So as per the notes, 7490 is both a binary and a decade counter, right? So what is a binary counter? Binary means two values. So we call 7490 as a binary counter because it is possible that using this particular IC, I can count only two states, that is state which is represented by logic 1 and the second state which is represented by logic 0. इसलिए उसको binary बोलते हैं, right? And it is also called as a decade counter because it can be used as a decade counter. So please understand one thing, that 7490 is not ready-made a decade counter. It can be connected as a decade counter. Why? Because if you carefully see the internal architecture of 74LS190, it is having one block called as mod 2 and another block called as mod 5. So this particular IC can be used only as a mod 2 counter wherein it counts two states 1 and 0, or as a exclusively mod 5 counter which is counting 4 states. That is mod 5 counter means goes through 5 states, and 5 states need 3 bits to represent. So it can start at 000, go to 001, 010, 011 and 100 and come back. So mod 5 is a counter which has an ability to count 8 states, but it is not allowed to count 8 states. It is allowed to count only 5 states, that is 0, 1, 2, 3, 4, and then roll back. So state 6, 7 and 8, that is count 1, 0, 1, 1, 1, 0 and 1, 1, 1. These three states are called as illegal states. So inside the 7490, the manufacturer has done some kind of a combinational arrangement that the 3-bit counter, which has an ability to count from 000 to 111, is not allowed to count the states 6, 7 and 8. That is what is called as a mod 5 counter. So I can use 90 as a mod 2 counter or as a mod 5 counter, and I can cascade mod 2 and mod 5 to get a decade counter. So decade means 10, and 10 means 10 is equal to 1 into 10 is also equal to 10 into 1 is equal to 2 into 5 and 5 into 2. So this concept of the number 10 being a product of two numbers 2 and 5 is used by this manufacturer. It has a mod 2 counter, mod 5 counter. When we cascade both of them, you get a mod 10 counter. If I want a mod 80 counter, 80 can be say 8 into 10. So I can cascade a mod 8 counter and a mod 10 counter. This is the simple concept here. Okay. So
We have understood why 7490 is called as a binary counter and decade counter. Now here, so I have explained here, binary counter means that which counts in binary. Decade counter means that which counts only 10 states, the first 10 states, right? Now, why should a digital circuit do? Okay, what? So what should a digital circuit do to qualify itself to be called as a counter? So very simple. A cooker cooks, a sweeper sweeps, an engineer engineers a design. Similarly, counter is something which count. But what does it count? Counter is a system which counts the number of clock cycles received. That is what exactly happens in a counter, my dear students. That whenever we see a counter, whether it is a 3-bit counter or a 4-bit counter, a 4-bit counter will start with 0000 and go till 1111. But how does it increment? When does it increment? So it increments itself by 1 because of the circuit. But when does it increment? It increments by 1 whenever it receives either a rising edge of the clock or a falling edge. So every rising edge or falling edge received by the counter system forces it to increment by 1. That means what? If I receive 2 edges, the counter has incremented 2 times. It has gone from 0 to 1 and 1 to 2. So whenever a counter receives 2 edges, the first edge it receives, it goes from 0000 to 0001. When it receives the second rising edge, it goes from 0001 to 0010. So after receiving 2 clock edges, the counter is showing 0010 means decimal 2. Because by seeing the count at the counter's output, I can have a clear idea that how many clock cycles have been received. That means what? A reverse or corollary of what definition I gave is that if my counter's output is 0111, that means decimal 7. That means the counter has received 7 edges till now. If my counter's output is 1010, so 1010 is decimal 10. That means it has received 10 clock edges. This is exactly what it means. So what is the counter made up of? It is made up of flip-flops and not latches. Second attribute of a counter is it is an edge triggered system and not level triggered. Third, since clock has edges, it is a clock driven system. So a simple way of defining a counter is that first, it is made up of flip-flops and not latches. Second, that a counter is an edge triggered system and not a level triggered. That means it must receive at its clock inputs either a rising edge, that is 0 to 1 transition, or else falling edge, that is 1 to 0. Third is, since clock has edges, it has clock driven. So clearly you know that clock is made up of cycles and every cycle has 2 edges. One is a rising edge and a falling edge. Very simple. The clock has to have a duty cycle of 50%. Okay. Yeah. Counting in binary means very simple. This is all you know. Directly go. Yeah. So a 4-bit counter can have 4 bits as an output. So it can go from 0000 to 1111. That is decimal 0 to decimal 15. My counter, which has 4 outputs, can count from 4 zeros to 4 ones. If I allow the above 4-bit counter to count all 16 states, it will be called as a 4-bit binary counter or mod 16. So it's very simple. A 4-bit counter has a capacity to count 16 states, that is from decimal 0 to decimal 15 or binary 0000 to 1111. If I allow 4-bit counter to count to its fullest capacity, I repeat, if I allow a 4-bit counter to count to its fullest capacity, it is called as mod 2 raised to n counter. So mod 16 counter, 4-bit counter means mod 2 raised to 4. So that is why any n-bit counter which is allowed to count all 2 raised to n states is called as a non-truncated counter. Now see the second case. If I allow the above 4-bit counter to count only from 0000 to 1001, that is from decimal 0 to decimal 9, that means 10 states, it will be called as a decade counter. So my students understand, decade counter is not some special IC. Decade counter is actually a 4-bit counter which is not allowed to count 6 states, that is from 1010 to 1111. These 6 states
are illegal for a decade counter, right? So decade counter is basically a 4-bit counter which is not allowed to count 6 states but allowed to count only 10 states from 0000 to 1001. Other words, decimal 0 to decimal 9. Now, this is all, to be skipped. No issues. Okay. Yeah, 1-bit counter, 2-bit counter not needed. Yeah. So as I told you that 74LS90 basically in the simplest form can be represented like this, that it is having two blocks. First is mod 2 and second is mod 5, and mod 2 and mod 5, both of them are given separate clocks. That means what? If I don't apply a clock to mod 5, it will not run. Nothing will come out as QD, QC, QB. Similarly, if I don't apply a clock to mod 2, nothing will come out at QA. That means whichever block receives the clock, that block will give output, right? So if I give a clock input to mod 2 and not to mod 5, the output QA will continuously toggle 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1. That is what it will happen. Okay, two states. Similarly, if I don't give clock input to mod 2 but I give to mod 5, then the outputs will go from QD, QC, QB. Understand? QD is MSB, QB is LSB. So it will go from 0, 0, 0. So QD, QC, QB is equal to 0, 0, 0 to 1, 0, 0 and roll back. And on the other hand, if I give the QA output to one of the cascade inputs of mod 5, then the system, no, it's not like that. If I give the QA output as an input to mod 5 clock, that means if I connect the QA output of mod 2 and give it to the clock input of mod 5, then it becomes a mod 10 or a decade counter. I hope things are clear till now. So that these notes are over, I'll shift to another notes wherein actually we go and study the counters. Okay, yeah, we are here. So 7-4, yeah, study of synchronous counters. Yeah. So assignment number 5 was about implementing 4-bit asynchronous and synchronous counters using MS-JK flip-flop, that is IC 7473. So for our information, if you don't know, IC 7473 is a dual master slave JK flip-flop. I think so it's single. I have to refer to the data sheet. So 7473, it contains a master slave JK flip-flop. Now, if I want to implement a 4-bit asynchronous or a synchronous counter, because I have 4 bits at the outputs, I need 4 JK flip-flops. And if 7473 contains only one such JK flip-flop, I will need 4 such ICs. On the other hand, if 7473 IC contains dual JK flip-flop, that means it say one IC, it contains 2 JK flip-flops, I will need 2 ICs. That means the one 7473 will give me 2 JK flip-flops and second IC will give me another 2 flip-flops. So combining both of them, I can implement a 4-bit counter. Now, depending upon what kind of connections I make between the individual flip-flops, that will decide whether that particular system will be a asynchronous or a synchronous counter. How do you do that? Very simple. Now, in this particular 4-bit counter, if I give my system clock to the LSB flip-flop, that is the flip-flop which is generating the bit Q0. If I give the system clock to this LSB flip-flop, and if I give the output Q0 as a clock input to the middle next flip-flop which generates Q1, if I give Q1 as a clock input to the flip-flop which generates Q2, and if I give Q2 as a clock input to the flip-flop generating Q3, it becomes an example of asynchronous counter. On the other hand, if I tie the clock inputs of all 4 flip-flops and I give a common clock, it becomes an example of a synchronous counter. And then there is some combination logic such as AND gates between the outputs, and then it becomes synchronous counter, right? I hope that the difference between asynchronous and synchronous using 7473 is clear. Now, the functionality of up and down counting is not available within 7473, but it has to be achieved using external connections, right? So basically 7473 is a dual JK flip-flop, but it is only a JK flip-flop. It is not a counter. So yes, I can surely build counters, asynchronous counters, synchronous counters using 7473 as a building block or as a component. But then it becomes very, very difficult to
convert these counters into up and down counters. So the thing is that if I have built a asynchronous up counter using 7473, then if I want to convert it into a down counter, I have to change the connections. I repeat that if I want to implement up and down counter using 7473, then first thing is that I have to use two ICs. So two ICs must come together to form a 4-bit counter, and then I have to add additional hardware to convert it into up counter. And if I want to convert it into down counter, I change hardware. So problem is that more number of ICs are required, and also I have to change the hardware if I want to shuffle the functionality between a up counter and down counter. So there is a one chip solution. So ICs 74190, 191 and 193, these are ICs in which there is a built-in functionality to shuffle between up counting and down counting. I repeat, so why do you prefer 190, 191 and 193 over 7473? Is that this IC has all necessary hardware inside itself to do up counting, down counting, and also parallel loading. That means I can just load the counter with some count, say 1000, that is 8. And I can tell the counter that you start counting from 8 up to 16, or I can also tell it to count from 8 down to 0. So up counting, down counting, as well as parallel loading, all these functionalities are available in only one IC. And in electronics field, lesser the hardware, the better it is. Why? Because less is the hardware, less is the power dissipation, less is the power consumption from battery, and also it is easy to troubleshoot. Got the point? That is why less hardware is always preferred. So in 7473 based counters, the hardware is more, and you need to always change the connections to shuffle the functionality from up counting to down counting, right? That is why we are having the ICs 190, 191 and 193. Now 193, I think so is not in the syllabus. I'm not sure. We have to open the syllabus, but we don't want to spend time. But 190, 191 are there. And I'll tell you one thing, 190 and 191 are exactly same. Now I'll give you a classic example. If some of you have little bit knowledge about cars, then I will give you a very simple example from the automobile industry. Now, if you carefully see this company Volkswagen, they have two cars. One is Volkswagen Polo and Volkswagen Vento. So the difference between Volkswagen Vento and Polo cannot be recognized if you see the cars from the front, because from the front, Polo and Vento look exactly the same. Getting me? But when you go behind the car, you come to know that one is Polo and one is Vento. Why? Because Polo is a hatchback car and Vento is a sedan. That means what? The only difference you find is that one is having a separate boot and Polo is having a smaller boot. That means what? Vento is nothing but Polo plus a larger boot space in layman terms. Similarly, 190 is like Polo and 191 is like Vento. Getting me? So if you want to put more luggage, go for Vento. If you want less luggage, go for Polo. Similarly, if you just add some functionality to 190, it becomes 191. How? 190 is a decade up-down counter with parallel loading, and 191 is a mod 16 counter. That means what? The similarities between 190 and 191 are that 190 and 191, both of them are 4-bit counters. I repeat, 190 and 191, both of them are 4-bit counters. The only difference is that 190 is a truncated 4-bit counter. That means what? It is not allowed to count all 16 states. It is allowed to count 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, roll back to 0. That means what? 10 states, mod 10 counter, decade counter. In the 190, the count 10, 11, 12, 13, 14, 15 are called as illegal states. 191 is a 4-bit counter, but it is a mod 16 counter. It can count 16 states. It can count from 0000 all the way to 1111. That means mod 16 counter. So 190, 191, both of them have a facility of up counting.
as well as down counting, as well as parallel loading. Only difference is 190 can count only from decimal 0 to 9. 191 can count from decimal 0 to 15. With this background, let us see the notes. It will be a revision for us. Similarities, both are 4-bit counters. And we know that 4-bit counters on paper mostly we represent as Q3 to Q0, Q3 being MSB, Q0 being LSB. Now another similarity, as I told you, both the ICs can offer you up counting and down counting. Now the difference is 190 is a BCD counter, mod 10 counter can go from 0 to 9 and also 9 down to 0. So you can go from 0 up to 9 in up counting mode, can go from 9 down to 0 in down counting mode. 74191 is a mod 16 counter. It can go from 0 to 15 in up counting mode. It can go from 15 down to 0 in down counting mode. Got the point? So now there are some more accessories, or you can say bonus facilities, which are given. The first bonus facility which both the counters have is something called as terminal count TC. So what is terminal count? It's very simple. Terminal means maximum possible. Okay, so terminal count can mean maximum possible or minimum possible. Terminal means the end, extremity. What happened? For example, what is the terminal count of a 2-bit decimal number? It is 99. Similarly, 00 can also be called as terminal count. So if I count down in the decrement mode, the terminal count for a 2-digit number is 00. But a terminal count for increment function in a 2-bit in a 2-digit system is 99. Similarly, if I say what is the terminal count for a 4-digit number, it depends upon which mode I'm speaking. If I say that I'm going in down counting mode, then again the terminal count for a 4-digit system would be 0000. Similarly, the terminal count for a 4-digit up counting system is 9999. So that means what? There cannot be one definition for terminal count. It will depend upon whether my counter is in up counting mode or down counting mode. So terminal count basically means what is the extreme or the extremity here. So if my counter is going in the up counting mode, that means 9 is the terminal count. But if it is going in down counting mode, 0 is a terminal count. You please remember this thing. Why? Because when I will show you the multi-sim simulation at that time, the terminal count LED will glow sometimes at 9 and sometimes at 0. So अरे सर टर्मिनल काउंट पे 9 या 0 है, डिपेंड करता है. अगर आप अप काउंटिंग मोड में है तो जो काउंटर 1001 पे है तो वो हो जाता है टर्मिनल काउंट. लेकिन अगर वही काउंटर अगर डाउन काउंटिंग मोड में है तो जब वो 0000 पे रहता है तो वो होता है टर्मिनल काउंट. अभी अगर हम 190 की बात करते हैं तो अप काउंटिंग मोड में 1001 और डेसिमल 9 इज टर्मिनल काउंट. इन द डाउन काउंटिंग मोड 0000 और डेसिमल 0 टर्मिनल काउंट. लेकिन जब हम 191 की बात करते हैं तो उस आईसी में जब अप काउंटिंग मोड होता है तो 1111 या तो फिर डेसिमल्स 15 इज द टर्मिनल काउंट. लेकिन वही आईसी जब डाउन काउंटर मोड में चलता है तो उस टाइम पे 0000 या तो डेसिमल 0 हो जाता है टर्मिनल काउंट. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे 0 से लेके 15 तक हमने पूरा एक स्टेट डायग्राम बनाया है. तो यहाँ पे अगर हम 190 आईसी की बात करते हैं जो कि बीसीडी काउंटर है या तो फिर मॉड 10 काउंटर है, इन दैट केस 4-बिट काउंटर होने की वजह से इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू काउंट फ्रॉम 0000 टू 1111, मतलब कि डेसिमल 0 टू 15. लेकिन आपको देखें यहाँ पे कैसे दिखाया मैंने. यहाँ पे मैंने बोला है कि 0 से लेके 9 तक स्टेट्स को लीगल बोलते हैं और 10 से लेके 15 को बोलते हैं इलीगल. ओके, अभी देखेंगे कि मैंने राइट साइड एरो बनाया. तो द राइटवर्ड एरोज indicate the operation of 190 in the up counting mode, 0 to 1, 1 to 2, so on and so forth till 9. But when it is in down counting mode, it will go from 9 to 8, 8 to 7, so on and so forth till 1. मतलब क्या? Legal state 0 to 9 है. When arrows are from left to right, it is in up counting mode. When the arrows are from right to left, down counting mode. अभी देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई है मैंने. यहाँ पे मैं आपने देखेंगे कि जब 10 है तो 10 के बाद एरो दिखा है 11 की तरफ, जब 11 से एरो दिखा है 6 की तरफ. जब तुम्हारा स्टेट 12 होता है तो उसका नेक्स्ट स्टेट है 13 और 13 का नेक्स्ट स्टेट है 4. जब स्टेट 14 है तो 14 जब स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट 15 है और 15 है तो नेक्स्ट स्टेट 2 है. स्टूडेंट्स,
You may or may not know, this is called as a Bush diagram for a counter. I am telling you, repeating you, this is called as a Bush diagram. So what is a Bush diagram? A Bush diagram indicates to us that accidentally, if my counter enters into any one of the illegal states, then how does it return back to a legal state? I repeat, Bush diagram for a counter, it shows us that accidentally, if my counter enters into any one of the illegal states, how does it return to the legal state? So we know that in 190, 0 to 9 is legal states. So it is showing us that accidentally, if my counter goes into the state decimal 10, immediately there is some hardware inside the IC that when the counter accidentally goes into the state 10, it is forced to go to 11 and then forced to 6. And after coming to 6, if it is in down counting mode, it will go from 6 to 0. If up counting mode, it will go from 6 to 9. Similarly, if accidentally enters into decimal state 12, it is forced to go to 13, 13 to 4, and then 4 to 9 or 4 to 0. Similarly, if it enters into state 14, then 14 forced to 15, 15 to 2, and then 2 to 9 or 2 to 0. This is called as a Bush diagram, right? So Bush diagram indicates how a counter goes from a particular illegal state to legal state. अभी देखेंगे यहाँ पे 74191, again repeating, mod 16 counter, 0 to 15, everything is legal. So 0 to 15 up counting mode, 15 to 0 down counting mode, और up counting mode में तुम्हारा 15 is a terminal count and 0 is the terminal count in down counting mode. Okay, now students, we come to the most important part which will help us to appreciate the simulation. That is the pin diagram of 74190 and 191. Okay, तो अभी मैं क्या करूंगा, डेटा शीट ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे पिन्स होते हैं. ओके, सो यहाँ पे 191 देखेंगे हम. These are presettable BCD or decade अप डाउन काउंटर्स एंड प्रीसेटेबल 4-bit बाइनरी और अप डाउन काउंटर्स. तो ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है प्रीसेटेबल बीसीडी डिकेड काउंटर, दिस इज रिटर्न फॉर 74LS 190. और नीचे का जो लिखा हुआ है प्रीसेटेबल 4-bit बाइनरी अप डाउन काउंटर्स, ये लिखा है 74190 के लिए. तो 4-bit बाइनरी काउंटर का मतलब है मॉड 16 काउंटर, बीसीडी या डिकेड काउंटर का मतलब है मॉड 10 काउंटर. ओके, तो ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको ये इंपॉर्टेंट है. ओके, आपको पीडीएफ दिख रहा है अभी? यस सर. ओके, तो वेरी सिंपल है. 16 पिन का आईसी है. देखेंगे कौन कौन से पिन्स के ऊपर गौर करना जरूरी नहीं है. पिन नंबर 16 छोड़ दो, पिन नंबर 8 छोड़ दो. कितना अच्छा है ना, 16 में से 2 तो चले गए, अब 14 की चिंता करने की जरूरत है. ओके, तो 16 इज वीसीसी, 8 इज ग्राउंड. जस्ट फॉरगेट देम, देयर इज नो लॉजिक देयर. अभी देखो यहां से ध्यान से. ओके, अभी इसके अंदर पेयरिंग है. रिमेनिंग जो 14 पिन्स है ना, उसको हम पेयरिंग से समझेंगे. ओके, फर्स्ट पेयर कौन सा है? फर्स्ट पेयर है तुम्हारे पी सीरीज है. कौन सी सीरीज है? पी सीरीज. अभी ध्यान से देखो, पिन नंबर 9 P3, पिन नंबर 10 P2, पिन नंबर 1 P1 एंड पिन नंबर 15 P0. मतलब P3 P2 P1 P0, मतलब कि पिन नंबर 9, 10, 1 एंड 15, ये जो पिन्स है 4, उसको पैरेलल लोडिंग के पिन्स बोलते हैं. मतलब हमारा काउंटर 4 बिट का है, वेदर 190 191. तो अगर हमको कोई भी एक काउंट लोड करना है, तो सपोज मुझे ऐसी इच्छा है कि मेरा काउंटर है वो 5 से शुरुआत होके 9 तक जाना चाहिए, या तो 5 से शुरुआत होके 16 तक जाना चाहिए. तो ऐसे केस में क्या करूंगा मैं, ये पिन नंबर 9, 10, 1 और 15 पे मैं 0 1 0 1 ये मैं काउंट बाहर से एक्सटर्नली मैं लोड कर दूंगा. और वो लोड जैसे करूंगा, तो वैसे जब मेरा पिन नंबर 11 को जब मैं ग्राउंड पे कनेक्ट करूंगा, ओके, तो पीएल मतलब पैरेलल लोडिंग. स्टूडेंट्स, पिन नंबर 11 है, पीएल बार है. क्यों पीएल बार है? ये एक एक्टिव लो सिग्नल है. एक्टिव लो का मतलब है कि ये अपना काम तब करेगा जब मैं इस पिन को मैं ग्राउंड को कनेक्ट करूंगा. तो पीएल बार रिप्रेजेंट्स दैट पैरेलल लोडिंग फंक्शनैलिटी इज इंप्लीमेंटेड इन द आईसी इफ आई कनेक्ट दिस पिन टू ग्राउंड. तो मैं अगर पिन नंबर 9, 10, 1 और 15 को 0 1 0 1 दूंगा और मैं पिन नंबर 11 को ग्राउंड कर दूंगा, तो मेरा काउंटर जो है ना, वो ना 0 से शुरू होगा, ना 9 से होगा, ना 15 से शुरू होगा, वो शुरू होगा 5 से. ओके, तो ये जो 5 पिन, तो 14 में से 5 पिन को तो हमने कवर कर लिया. अभी देखो, जो पिन नंबर 12 है वो टर्मिनल काउंट वाला पिन है. कैसे? बिकॉज जब भी हमारा काउंटर अप मोड में रहेगा और काउंट पहुंचेगा 9,
या तो 15, उस टाइम पे ये पिन नंबर 12 के ऊपर एक लॉजिक 1 आ जाएगा. सो लॉजिक 1 विल बी जनरेटेड एट पिन नंबर 12 इफ माय काउंटर इज ऑन द टर्मिनल काउंट ईदर इन अप और डाउन काउंटिंग मोड. ओके, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सीपी है, मेरे हिसाब से सीपी जो है क्लॉक पल्स है. तो हमको क्लॉक लगाना ही है, काउंटर बिना क्लॉक के चलता नहीं है. ओके, अभी हम देखेंगे नीचे ये जो तुम्हारे पिन नंबर 7, 6, 2 एंड 3, ये है हमारे काउंटर का आउटपुट Q3, Q2, Q1 एंड Q0, राइट. तो हमारा जो काउंटर का आउटपुट है वो पिन नंबर 7, 6, 2 और 3, मतलब कि MSB से लेके MSB तक जाता है. और पिन नंबर 5 देखेंगे तो U/D है, मतलब अप या डाउन काउंटिंग. देखा, तो अभी हम नीचे जाके पढ़ेंगे कि पिन नंबर 5 को मुझे VCC को कनेक्ट करना है अपलोडिंग के लिए, अप काउंटिंग के लिए, या तो 0 को कनेक्ट करना है, वो हमको पता चलेगा. उससे साथ साथ पिन नंबर 4 जो है वो CE है, इसका मतलब काउंट एनेबल है, राइट. अभी क्लियर है कि CE जो है उसके ऊपर पिन नंबर 11 की तरह उन्होंने बार नहीं दिया है. इसका मतलब कि ये जो पिन है वो एक्टिव हाई है. गेटिंग मी ना? एक्टिव हाई का मतलब है कि माय काउंटर विल स्टार्ट काउंटिंग ईदर इन अप और डाउन काउंटिंग मोड ओनली इफ आई कनेक्ट दिस पिन टू VCC. ओके, अभी नीचे जाके देखते हैं. अभी ये तो मेरी मेमोरी है 4.5-5 महीने पहले की, मुझे कुछ चीजें से याद नहीं है, या तो गलत भी हो सकता हूँ. लेट अस चेक वेदर माय मेमोरी इज करेक्ट और नॉट. ओके, नीचे गए हम, यहाँ पे देखो, देखो गलती की ना मैंने क्या गलती की, इन्होंने एक्चुअली पिन नंबर 4 के सामने C बार नहीं लगाया, तो मैं कंफ्यूज हो गया. तो दिए हुए पिन आउट डायग्राम के हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग बराबर थी, लेकिन मैंने जब पढ़ा नहीं तो पता चला मैं गलत था. ओके, तो CE है वो एक्टिव लो है, काउंट एनेबल एक्टिव लो इनपुट, मतलब कि मैं पिन नंबर 4 को जब ग्राउंड को कनेक्ट करूंगा तभी मेरा IC चलने वाला है. CP क्लॉक पल्स है, एक्टिव हाई ट्रिगर्ड है. ओके, अभी नीचे जाएंगे तो देखेंगे U/D है. देखा, U/D का मतलब है कि जब मैं पिन नंबर 5 को ग्राउंड को कनेक्ट करूंगा तो अप काउंटिंग होगा, जब मैं 1 को कनेक्ट करूंगा तो डाउन काउंटिंग होगा. ओके, PL इज पैरेलल लोडिंग, पैरेलल लोड कंट्रोल, मतलब पिन नंबर 11 को ग्राउंड करेंगे तो पैरेलल लोडिंग होगा. अगर मैं पिन नंबर 11 को VCC को कनेक्ट करूंगा, मेरा काउंटर है वो नॉर्मली 0 to 9 190 के लिए, 0 to 15 191 के लिए, या तो 9 to 0 या 15 to 0 जाएगा. ओके, वेरी सिंपल. QN का मतलब है Q3, Q2, Q1, Q0, वो आपके आउटपुट है, वो तो मैंने बता दिया है. एक रिपल क्लॉक आउटपुट है RC, और एक टर्मिनल काउंट. ओके, तो रिपल क्लॉक RC बार, मेरे हिसाब से जो रिपल क्लॉक है उसको हम कैस्केडिंग के लिए यूज करते हैं. गॉट द पॉइंट? मतलब कि अगर मुझे सिर्फ 4 बिट की फंक्शनैलिटी चाहिए तो मुझे लगता है कि RC बार जो है उसको मुझे कहीं पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और डेटा हमको बताएगा. ओके, ये तुम्हारा बुश डायग्राम है, इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, अभी यहाँ पे मेरे नोट्स में जाऊंगा, नोट्स में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया. राइट, इज माय वन नोट विजिबल टू यू नाउ? Yes, sir, it is visible. या विजिबल, राइट. सिंपल है, यहाँ पे सब कुछ सिंप्लीफाई करके मैंने रख दिया आप लोगों के लिए, नोट्स में शेयर करूंगा. देखो देखो, अभी 16 पिंस का ब्रेकअप है. कैसे? 2+4+4 लेके 16 तक. ओके, कैसे किया है मैंने? VCC कोमा ग्राउंड इज 2 पिंस, रिमेनिंग 14. Q3 to Q0 आउटपुट्स 4, तो 14 में से 4 गए, बचे 10. P3 to P0 पैरेलल लोडिंग, और 4 चले गए, 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6. देखो 6 कैसे है? क्लॉक जो है वो एक पिन में गया, पैरेलल लोडिंग बार 1 पिन, CE बार काउंट एनेबल 1 पिन, टर्मिनल काउंट 1 पिन, रिपल क्लॉक 1 पिन, एंड अप और डाउन काउंटिंग का कंट्रोल 1 पिन. गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है काउंटर में, कि सिंपल है, अगर आपको काउंटर चलाना है तो क्या करना है, CE बार का जो पिन है उसको 0 करना है. काउंट एनेबल शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड. सिमिलरली अगर आपको काउंटर की तरह काम करना है तो आपको PL बार, पैरेलल लोडिंग का जो पिन नंबर 11 है, उसको VCC को कनेक्ट करना है, तो आपका काउंटर नॉर्मल अप डाउन में चलेगा. U/D, इसको ग्राउंड करेंगे तो अप काउंटिंग में जाएगा, अगर 1 कनेक्ट करेंगे तो डाउन काउंटिंग में. टर्मिनल काउंट 1 कब होगा? अगर 0 होगा डाउन काउंटिंग मोड में, 9 होगा अप काउंटिंग मोड में. सिमिलरली अगर 191 की IC के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जब काउंट 0 होगा तो
डाउन काउंटिंग मोड में टर्मिनल काउंट होगा, जब 15 होगा तब काउंट होगा। क्लॉक इज एज ट्रिगर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया है ना, तो अभी मैं जब आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा ना, आपको क्लियरली पता चलेगा। एक बार सिर्फ रिपीट कर ले। काउंट एनेबल शुड बी ग्राउंडेड, पैरेलल लोडिंग शुड बी कनेक्टेड टू वीसीसी, और अप स्लैश डाउन, 0 for up counting, 1 for down counting, terminal count and clock. Students, now we are in a position where I can show you the simulation of both 190 and 191. Okay, तो अभी मैं मेरा ओपन करता हूं मल्टीसिम। इट्स हियर, मल्टीसिम 14 यूज कर रहा हूं मैं अभी। अब जाएंगे हम ओपन, और वी विल गो हियर टू डेस्कटॉप। यहाँ पे हम देखेंगे 190 की चर्चा करेंगे पहले। ये है हमारा 190। ओके, अभी थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मल्टीसिम के डेटाबेस में जो 190 का जो आईसी है, उसका जो पिन का नाम है वो, और हमारा डेटा शीट में जो दिखता है उसमें डिफरेंस है। ओके, तो बताता हूं मैं क्या डिफरेंस है। आपको सिर्फ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करना है। ओके, तो एक तरफ हम यहाँ पे पिन ओपन करके रखते हैं, इसको कर देंगे छोटा, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं और एक लूंगा और मैं डेटाबेस में से 74190 को लेके आऊंगा, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि एक ब्लैंक आईसी कैसे दिखता है विदाउट कनेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे हम और हम लिखेंगे 74190। अभी मुझे पता नहीं है कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा TTL में। तो 74190 ये रहा। ओके, तो यहाँ पे लाया हमने, और इसको हम करेंगे रोटेट, एडिट में जाके ओके, जूम करेंगे इसको। जूम करने के बाद यहाँ पे इसको भी करेंगे छोटा, और दोनों को हम जक्स्टापोज करेंगे डेटा शीट के साथ। ओके, करेंगे इसको छोटा, इसको करेंगे भी छोटा। ओके, या ओके स्टूडेंट्स, 1 to 1 करस्पॉन्डेंट देख लीजिए अभी यहाँ पे। सो पिन नंबर 9, 10, 1 and 15, 9, 10, 1 and 15 हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। 9, 10, 1 and 15 ये है P3 to P0। तो डेटा शीट में जिसको हम P3 to P0 बोलते हैं, हम मल्टीसिम के अंदर उसको बोलते हैं DCBA। सिमिलरली आप देखिए दूसरा पेयर है 7, 6, 2 and 3। डेटा शीट के अंदर 7, 6, 2 and 3 है Q3 to Q0। उसी को जो मल्टीसिम है वो बोलता है QD, QC, QBQ, मतलब QD सेम एज Q3 एंड QA सेम एज Q0। उसके बाद और आगे जाएंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे CTEN। तो CTEN जो है मल्टीसिम का पिन नंबर 4 पे, दैट इज नथिंग बट CE बार इन द डेटा शीट। तो जिसको हम CE बार बोलते हैं डेटा शीट में, उसी को बोलते हैं CTEN मल्टीसिम में। सिमिलरली देखेंगे LOAD, तो जिसको हम बोलते हैं PL बार पिन नंबर 11 पे डेटा शीट में, उसी चीज को हम बोलते हैं LOAD मल्टीसिम में। उसी तरह देखेंगे कि U/D, ये जो है वो पिन नंबर 5 पे है, और दोनों के नाम से मतलब U/D डेटा शीट में और मल्टीसिम में सेम है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे RC0। तो RC0 जो है वो सेम एज RC बार है, देखेंगे पिन नंबर 13। सो RC बार इन डेटा शीट इज कॉल्ड एज RC0 इन मल्टीसिम। सिमिलरली देखेंगे max/min, तो जिसको हम TC बोलते हैं डेटा शीट में पिन नंबर 12 पे, उसी चीज को हम बोलेंगे max/min किसमें, मल्टीसिम में। सिमिलरली लास्ट एक सिग्नल है CLK, तो जिसको हम बोलते हैं CP क्लॉक पल्स एट पिन नंबर 14 इन डेटा शीट, उसी चीज को हम बोलेंगे CLK इन मल्टीसिम। With this background, having understood the one-to-one correspondence between the datasheet and multisim, directly I will show the simulation of 74190. It is here, students. बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए आप, ओके, तो ये मेरा है 74190। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले कनेक्शन समझा देता हूं मैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो तुम्हारा पैरेलल लोडिंग है पिन नंबर 11 पे, जूम करके दिखाता हूं। ये जो पैरेलल लोडिंग है ये है LOAD। तो देखिए ध्यान से, पिन नंबर 11 है,
उसको मैंने एक स्विच को कनेक्ट किया हुआ है प्रीसेट काउंटिंग के लिए, राइट। तो अगर हमको हमारे आईसी को नॉर्मल काउंटर की तरह काम करवाना है तो पिन नंबर 11 जो होना चाहिए वीसीसी को कनेक्ट होना चाहिए। और अगर हमको एक लोड अगर काउंट करना है, लोड अगर एक काउंट लोड करना है तो इसको कनेक्ट करूंगा मैं ग्राउंड पे। ओके, तो फिलहाल में हमको पहले काउंटिंग देखना है 0 to 9 और 9 to 0, इसीलिए मैं पिन नंबर 11 जो है उसको मैं 1 पे कनेक्ट करके रखूंगा। ओके, अभी जाएंगे यहाँ पे अप एंड डाउन काउंटिंग का, देखेंगे आप अप एंड डाउन काउंटिंग का जो पिन है पिन नंबर 5, तो हमने क्या पढ़ा था, इफ पिन नंबर 5 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड अप काउंटिंग, कनेक्टेड टू वीसीसी अप काउंटिंग, डाउन काउंटिंग, देखा सेम चीज है। अभी ये जो स्विच है, ये जो स्विच है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो पिन नंबर 5 पे ग्राउंड जाएगा, मेरा काउंटर है अप काउंटिंग मोड में चले जाएगा। अगर मैं वापस क्लिक करके उसको करूंगा तो ये पिन नंबर 5 जो है उसको मिलेगा वीसीसी, तो वो जाएगा डाउन काउंटिंग में। ये जो तुम्हारे 4 पिन है यहाँ पे आप देखेंगे DCBA, दिस नथिंग बट P3 P2 P1 P0, यहाँ पे मैं जो भी काउंट बोलूंगा वो काउंट लोड होगा। लेट अस सी कि मुझे 6 करना है तो 0101 मैंने लगा के रख दिया। यहाँ पे जैसे ही मेरा पिन नंबर 11 जैसे ही ग्राउंड हो जाएगा तो मेरा काउंटर है वो 5 से शुरुआत करेगा। ओके, अभी नीचे जाते हैं। अभी पिन नंबर 14 जो है CP, उसको मैंने नॉर्मल क्लॉक दिया है, फ्रीक्वेंसी दिखाता हूं मैं। नीचे जाएंगे, मैक्स स्लैश मिन का जो पिन है वो आउटपुट पिन है, ये पिन पे 1 आता है जब मेरा QD QC QB QA, जब यहाँ पे या तो 0 या तो 9 आता है तो यहाँ पे एलईडी जलना चाहिए। ओके, सो द टर्मिनल काउंट एलईडी विल ग्लो व्हेनेवर माय काउंटर्स आउटपुट इज 0 और 9। और कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे जो आउटपुट है उसको मैंने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को लगा दिया। ओके, अभी डेमो शुरू करते हैं हम। ओके, तो छोटा करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अभी देखो स्टूडेंट्स, द सीन इज लाइक दिस, पैरेलल लोडिंग इज इक्वल टू 1, नॉर्मल काउंटर ऑपरेशन है। उसके बाद अप स्लैश डाउन जो है दैट इज कनेक्टेड टू 1, इसको मैं कर दूंगा 0 ताकि हम अप काउंटिंग मोड दे सके। टर्मिनल काउंट है, क्लॉक है, थ्रू। देखा स्टूडेंट्स? स्टॉप करेंगे और ये करेंगे। ओके, देखा आपने अप काउंटिंग में जा रहा है 5 6 7 8 9, देखा स्टूडेंट्स? पॉज करूंगा मैं, देखो अभी ये इसका 9 के बाद 0 चले जाता है, तो द फैक्ट दैट द मैक्सिमम काउंट ऑफ दिस आईसी इज 9 इज प्रूव्स दैट इट इज 74190। ओके, रन करेंगे, 9 के बाद 0 होगा तो अप काउंटिंग मोड में, देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, तो देखा आपने अप काउंटिंग मोड में टर्मिनल काउंट 9 होता है, तो जैसे 9 आता है तो टीसी वाला एलईडी जल रहा है, टर्मिनल काउंट का एलईडी जल रहा है 9 पे, देखा। अभी आपको मैं दिखाता हूं कि ये 0 पे कैसे जलेगा। ओके, तो अप डाउन वाला जो पिन है उसको मैं कर दूंगा, देखा डाउन काउंटिंग शुरू हो गया 5 4 3 2, देखा अभी अभी 1 के बाद जैसे 0 आ गया ना तो टर्मिनल काउंट 1, टर्मिनल काउंट पे एलईडी जल जाएगा, देखा 1 0, यू सी। सो इन द डाउन काउंटिंग मोड टर्मिनल काउंट इज 0, अप काउंटिंग मोड टर्मिनल काउंट इज 9, देखा। सो 9 8 7 6, अप डाउन इज इक्वल टू 1, देखा अप काउंटिंग में, बिकॉज U स्लैश D ग्राउंड हो गया 9 8 0, राइट। अभी हमने अप काउंटिंग डाउन काउंटिंग देख लिया, उसके लिए करस्पॉन्डिंग पिन नंबर जो भी है उसका देख लिया हमने। ओके, अभी देखो प्रीसेट काउंटिंग बताता हूं मैं, तो पॉज करूंगा मैं। अभी मेरा पैरेलल लोडिंग है 0101 तो 5 है, तो अभी काउंटर इज एट स्टेट 4 और काउंट इक्वल टू 3। जैसे ही मैं पैरेलल लोडिंग का जो इनपुट है उसको मैं जैसे 0 कर दूंगा, माय 190 विल गो इनटू पैरेलल लोडिंग मोड। तो अभी जैसे ही मैं सिमुलेशन को शुरू करूंगा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये जो काउंट है वो 3 से जंप होकर 5 चले जाएगा। यूजुअली काउंटर विल एंटर इनटू 5 ईदर फ्रॉम 4 और फ्रॉम 6, तो माय काउंटर कैन गो इनटू द स्टेट 5 ईदर इन द अप काउंटिंग मोड फ्रॉम 4 to 5 या तो फिर डाउन काउंटिंग मोड में 6 से 5 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा काउंटर 3 में है लेकिन अभी 5 में जंप होना चाहिए। वाई? बिकॉज पैरेलल लोडिंग बार का जो पिन है मैंने किया है ग्राउंड, और मैंने पैरेलल इनपुट जो है DCBA मतलब कि P3 to P0 उसको किया है 5। लेट अस सी नाउ, देखा 5 पे आ गया, डायरेक्टली 3 से 5 जंप हो गया। और देखेंगे आप तो अभी जो है वो 5 पे अटक गया अभी, राइट।
5 पे अटक गया। अभी मैं इसको क्लोज करूंगा, स्टॉप करूंगा और वापस रन करूंगा तो 5 से वो ऊपर जाएगा। देखा आपने? नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज सी ना, नहीं जाएगा वो, उसे पैरेलल लोडिंग में अटक गया। ओके, तो नाउ जब तक मैं पैरेलल काउंटिंग को ये नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखा अभी ये 5 से 4 2 से 1 क्यों गया? बिकॉज अप स्लैश डाउन इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो वापस एक बार रिवीजन फ्यू सेकंड्स में। सो नाउ आई एम मेकिंग अप स्लैश डाउन इक्वल टू 0 एंड माय काउंट एनेबल। ओके, आपने देखा और एक चीज, काउंट एनेबल का मैंने क्या किया हुआ है आपको मैंने दिखाया नहीं। यू सी हियर CTEN जो है, काउंट एनेबल जो है वो मैंने उसको अनकनेक्टेड रखा हुआ है। अनकनेक्टेड रखा हुआ है मैंने। ओके, तो अभी डेटा शीट तो कुछ बोल रहा है हमको कि काउंट एनेबल जो है एक्टिव लो इनपुट है, तो हमने इसको ग्राउंड को कनेक्ट करना है। तो अभी इट इज स्टिल वर्किंग, इट इज स्टिल वर्किंग। एक्चुअली इसको ग्राउंड को कनेक्ट करना चाहिए था मैंने। तो इसको मैं क्या करूंगा, VCC को कनेक्ट करके देखता हूं एक बार। सेव। आपने देखा अभी पैरेलल काउंटिंग डिसेबल्ड है और काउंटर अभी अप काउंटिंग मोड में है, लेकिन फिर भी माय काउंटर इज नॉट इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज मैंने काउंट एनेबल को मैंने 1 दे दिया है। गेटिंग में ना, इसलिए नहीं चल रहा है, इट इज नॉट वर्किंग। और जैसे ही मैं इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर दूंगा, ग्राउंड को भी कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको मैं। ये तो इसका डिसकनेक्शन कर दिया, डिलीट, और ये यहां से लेके कनेक्ट किया यहां पे। ओके, देखा इट हैज स्टार्टेड काउंटिंग अप, अभी डाउन काउंट में चले गया। देखा आपने? तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपने पिन को ग्राउंड किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू डोंट कनेक्ट द पिन टू एनीथिंग इट अज्यूम्स दैट इट इज ग्राउंड। ओके, अदरवाइज इट इज लाइक दैट। ओके, तो बाकायदा जब बोला है तो हमने इसको ग्राउंड को कनेक्ट करना चाहिए, तो हम ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे इसको। ओके, सो नाउ दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ 74LS190। ओके, उसी तरह आपको मैं 191 का भी दिखाता हूँ। एग्जैक्टली सेम, पता है, यू विल नॉट बिलीव। मैं इसको डिलीट करके, ये आईसी को डिलीट करके अगर मैं इसको मैं रिप्लेस करूंगा 191 से ना, तो वो डायरेक्टली एक मॉड 16 काउंटर की तरह काम करेगा। चलो मैं बातें कर रहा हूँ ना, आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आई विल गो हियर, स्टॉप द सिमुलेशन। देखो कैसे रिप्लेस करते हैं मल्टीसिम में कंपोनेंट्स। जस्ट डबल क्लिक और क्लिक रिप्लेस। वापस दिखाता हूं मैं आपको। अगर रिप्लेस करना है आईसी को, सिलेक्ट द आईसी, डबल क्लिक, रिप्लेस, और रिप्लेस करने के बाद सिर्फ उसको 191 से रिप्लेस कर दो। देखा आपने? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सेम है। अभी आप देखेंगे इसका सिमुलेशन में क्या होगा, सेम चीज होगी जो हुई थी, केवल 0 से लेके F तक जाएगा, F से लेके 0 तक जाएगा। ओके, तो अपने आईसी को कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले करते हैं अप काउंटिंग मोड के लिए, पैरेलल लोडिंग को डिसेबल करते हैं। काउंट एनेबल है, टर्मिनल काउंट है। सी नाउ, देखा आपने? 7 8 9 A B C D E F आ गया टर्मिनल काउंट। अप काउंटिंग में 0 1 2 3 4 5। अभी जब ये E आएगा ना तब मैं पॉज करके डाउन काउंटिंग मोड में चले जाऊंगा। देखा? अभी पॉज हो गया। अभी इसको मैं अप डाउन को कर दूंगा 1 और इसको करूंगा रन। देखेंगे डाउन काउंटिंग में चलेगा, DCBA 9 8 7 6, और जब 0 आएगा तब it will be terminal count. Okay, so 190 191 में this proves that there is a pin to pin compatibility between 190 191. that means दोनों IC exactly same है, केवल एक जो है उसमें mod 16 की एबिलिटी है। ओके, तो ये हो गया बंद, इसको बंद कर देंगे। ओके, अभी जस्ट फ्यू मिनट्स मोर आपको मैं और एक दिखाता हूं, 74LS194। ओके, तो इसको करेंगे मिनिमाइज, यहां पे जाएंगे और दिस इज IC194। तो असाइनमेंट नंबर 9 था, 4-bit शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो असाइनमेंट नंबर 9 था दैट वाज यूजिंग डिस्क्रीट फ्लिप फ्लॉप्स, दैट मींस 7474। तो
तो आप अगर लिटरेचर पढ़ेंगे तो जस्ट लाइक IC 7473 is dual MS-JK flip-flop. Similarly, IC 7474 is a dual D flip-flop. तो D flip-flop जो होते हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं और जो JK flip-flops है मेरे हिसाब से नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं. ओके तो फर्क पड़ता नहीं बिकॉज एक पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज के अंदर केवल एक T/2 सेकंड्स का डिफरेंस है. इट्स अ हाफ ऑफ द क्लॉक साइकिल. सो 7474 यूज करके जब आप एक शिफ्ट रजिस्टर बनाते हैं दैट इज योर असाइनमेंट नंबर 9. लेकिन अगर आप असाइनमेंट नंबर 10 के ऊपर आ जाएंगे तो इट इज यूजिंग ICs. ओके तो जिस तरह आप 7473 या 7474 को यूज करके आप एक असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर बना सकते हैं, उसी तरह आप 7474 यूज करके शिफ्ट रजिस्टर बना सकते हैं. जिस तरह 190 191 वो रेडीमेड काउंटर ICs है जिसके अंदर अप काउंटिंग, डाउन काउंटिंग, टर्मिनल काउंट और पैरेलल लोडिंग की फैसिलिटी है, उसी तरह 74194 है. तो डिफरेंस बिटवीन 74194 असाइनमेंट नंबर 10 एंड 9 इज सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन 190 191 एंड 7473 बेस्ड काउंटर्स. ओके तो ये एक रेडीमेड काउंटर है जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी है. राइट सो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं वो अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, आप बाद में पढ़ लेना. इसको मैं शेयर करूंगा टीम्स के ऊपर, इसका PDF प्रिंट करके मैं कर लूंगा. ओके फाइन. अभी ये जो है आपके सामने दैट इज नथिंग बट असाइनमेंट नंबर 9. तो असाइनमेंट नंबर 9 इज 4-bit शिफ्ट राइट शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर यूजिंग D फ्लिप फ्लॉप. राइट तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई एक IC नहीं है, यहाँ पे 2 IC है. इसके अंदर आप देखेंगे फ्लिप फ्लॉप 1 और फ्लिप फ्लॉप 2 है. दिस इज द फर्स्ट 7474 IC बिकॉज 17474 कंटेन्स 2 D फ्लिप फ्लॉप्स. उसी तरह फ्लिप फ्लॉप 3 और फ्लिप फ्लॉप 4 जो है दे आर द सेकंड 7474 IC. ध्यान से देखेंगे आप, ये सारे जो चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप है उनके क्लॉक इनपुट्स को मैंने एक साथ कनेक्ट करके क्लॉक दिया, विच प्रूव्स दैट इट इज अ synchronous counter. Okay, the fact that the clock inputs of all 4 flip-flops are connected and given to a same clock is a proof that it is a synchronous type of counter. Right, so the first 2 flip-flops starting from left form IC 7474 and the next 2 flip-flops from right to left or from middle to the right they form the second 7474. Okay, तो ये शिफ्ट राइट शिफ्टर्स का कंसेप्ट है, वो आप पढ़ लेना. आप सब इंटेलिजेंट हो, आपके डिप्लोमा में बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं और आप PhD में एडमिशन लिया है आपने, तो मैं अज्यूम करता हूँ आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तो नोट्स पढ़ के आप समझ सकते हो. यहाँ पे थोड़ा सा बस पुश देने के लिए बैठा हूँ मैं. ओके अभी आप जाएंगे 74194 पे. तो 74194 है बहुत ही वर्सेटाइल IC है, उसको आप एक रिंग काउंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और ट्विस्टेड रिंग काउंट की तरह यूज कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पे उसके डायग्राम्स है, किसको रिंग काउंटर बोलते हैं, किसको ट्विस्टेड रिंग बोलते हैं, आ गया है. व्हाट द पॉइंट. अभी 74194 के ऊपर आते हैं. 74194 इज अ 16 पिन IC और हम देखेंगे इसका डेटा शीट भी ओपन करके रखा मैंने आपके लिए. ये रहा 74194. ओके तो 74194 इज अ 4-bit बाय डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर. ओके मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि जैसे यहाँ पे देखेंगे दिस इज अ शिफ्ट रजिस्टर, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक कंट्रोल पिन है right/left. ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे जूम करके, तो यहाँ पे ऊपर एक पिन है. क्या पिन है, right/left. मतलब ये पिन को जब मैं 0 देता हूं तो मेरा जो शिफ्ट रजिस्टर है वो बिट्स को राइट शिफ्ट करता है. सिमिलरली ये इसको जब मैं 1 देता हूं तो मेरा ये जो शिफ्ट रजिस्टर है वो बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करता है, मतलब राइट से लेके लेफ्ट लेके जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमको यहाँ पे इनपुट चेंज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे देयर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. लेकिन ये जो तुम्हारा IC है 74194 उसके अंदर एक इनबिल्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट की फैसिलिटी. इट्स अ 4-bit बाय डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर. ओके तो ये उसका पिन डायग्राम है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ओके पढ़ के पता चल जाता है हमको कि क्या है ये. ऊपर देखा आउटपुट्स हैं तो QA QB QC QD ऑलमोस्ट QD MS भी है और QA LS भी है. सिंपल पिन नंबर 11 है वो क्लॉक है और आप देखेंगे यहाँ पे S1 S0 है. राइट तो मेरे हिसाब से S1 0 है, S1 S0 आर द डायरेक्शन कंट्रोल बिट्स बिकॉज एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर वो ऐसा होता है
कि वो सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये चारों चीजें वो कर पाता है। लेकिन किस पे डिपेंड करता है? S1 S0 पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने फंक्शन टेबल दिया हुआ है, राइट। तो S1 S0 विल डिसाइड द मोड ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। एज यूजुअल पिन नंबर 16 और 8 VCC ग्राउंड है, उसको आपने भूलना है। तो QD तो QA आउटपुट्स हैं, क्लॉक, और फिर आपका मोड सीसो से लेके पीपो तक का मोड यहाँ से डिसाइड होगा। ये तुम्हारा जो पिन नंबर 1 है वहां पे लिखा हुआ है क्लियर, और आप देखेंगे पिन नंबर 1 है, अंदर जाके एक बबल के साथ कनेक्ट हो रहा है, इंडिकेटिंग कि ये जो सिग्नल है वो एक्टिव लो है। इसका मतलब अगर मैं पिन नंबर 1 को ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूंगा, अगर मैं पिन नंबर 1 को ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरे जो आउटपुट्स है ना QD टू QA, वो सारे के सारे हो जाएंगे 0 0 0 0। उसके बाद आ गया है शिफ्ट राइट सीरियल इनपुट, मतलब ये है सीरियल इन। तो सीरियल इन, अगर आपको बिट्स को राइट डायरेक्शन में सीरियली इन देना है, तो आपने वो पर्टिकुलर इनपुट को पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करना है। सिमिलरली आप देखेंगे पिन नंबर 7 है शिफ्ट लेफ्ट सीरियल इनपुट, मतलब अगर आपको डेटा को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, राइट से लेके लेफ्ट में करना है, तो आपने वो जो इनपुट है पिन नंबर 7 पे देना, राइट। और ये आपके पैरेलल इनपुट्स हैं, पिन नंबर 6 5 4 एंड 3, इसको बोलते हैं पैरेलल लोडिंग। जब आपको पैरेलल इन करना है तो आपको S1 S0 को एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 या 1 1, ये चार में से कोई एक कॉम्बिनेशन कौन सा आपको बताता हूं मैं। तो whenever you change the bit combinations at pin number 10 and 9 from 00 to 11, the shift register will go from CISO to CIPO to PISO और to PIPO मोड। और जो भी मोड है अकॉर्डिंगली, अगर आपको पीपो चाहिए तो आपका डेटा है आप पिन नंबर 6543 पे लगाइए और अकॉर्डिंगली S1 S0 का आप कीजिए, राइट। सो पैरेलल इन पैरेलल आउट सीरियल इन सीरियल, तो इस तरह चलता है, राइट। तो अगर आप ऐसे समझेंगे तो चीजें काफी इजी हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कैसे सब चीजें चलती हैं, बहुत सिंपल है। मैंने जैसे बताया था कि पिन नंबर 1 क्लियर का पिन है, तो ये क्लियर का पिन है, हमको कंपल्सरीली 1 को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा सिस्टम है वो शिफ्ट रश की तरह चलेगा, राइट। इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पे कि क्लियर जब 1 है, क्लियर जब 0 है, राइट, तो यहाँ पे उन्होंने फंक्शन टेबल में 0 के लिए L यूज किया है और 1 के लिए H यूज किया है, राइट। तो whenever the clear pin is L, that is logic 0, it is clear mode। सारी चीजें डोंट केयर है, देखा आपने, S1 S0 डोंट केयर है, क्लॉक डोंट केयर है, राइट सीरियल इन, राइट लेफ्ट सीरियल इन, सब डोंट केयर है, पैरेलल इनपुट भी डोंट केयर है, सब कुछ क्या होता है, एवरी इनपुट इज डोंट केयर एंड आउटपुट इज 0 0 0 0। सिमिलरली इसके बाद के जितने भी कॉम्बिनेशंस है सारे के सारे हैं वो वैलिड हैं, फंक्शनल है, इसलिए ऑल द रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस गिवन इन द फंक्शन टेबल हैव क्लियर इक्वल टू 1। मतलब मेरे इस आईसी को एक शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम करवाने के लिए मुझे क्लियर को कभी भी 1 रखना पड़ेगा। इसे देखेंगे आप 1 1 1 1 1 1 1, 8 वंस लगाए हुए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब तुम्हारा क्लियर होगा 1, लेकिन क्लॉक अगर लो चल रहा है, तो बिकॉज इट इज एज ट्रिगर्ड सिस्टम, इट इज नॉट अ लेवल ट्रिगर्ड सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस थिंग जब क्लॉक लो पे चल रहा है बाकी सब कुछ डोंट केयर है और हमारे आउटपुट्स है वो मेमोरी में चले, इट इज इन द मेमोरी मोड। दैट मीन्स QA 0, QB 0, QC 0, QD 0, मतलब कि 0 का मतलब है पास्ट, 0 का मतलब है हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा क्लियर 1 है लेकिन अगर क्लॉक मेरा लो चल रहा है, मतलब क्लॉक पे एज नहीं आया, तो माय सिस्टम विल बी इन द होल्ड स्टेट। तो QD will remember itself, QC will remember itself, QB will remember itself, Q will remember itself। ओके, थर्ड कॉम्बिनेशन है क्लियर इज हाई, और जब मेरा मोड होगा 1 1, तो क्या होगा, जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा तो राइट एंड लेफ्ट जो है वो डोंट केयर होंगे, और जो भी मेरा पैरेलल इनपुट है ABCD वो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, with clear equal to 1 which is compulsory for enabling the IC, when S1 S0 equal to 1 1, it is in parallel out mode। ओके, तो हम देखते हैं कि पैरेलल इनपुट्स पे ए छोटा ABCD लिखा हुआ है वही बाहर आता है, मतलब 1 1 S1 S0 इक्वल टू 1 1 इज एक्चुअली PIPO मोड। उसी तरह हम देखेंगे आगे 0 1 है, क्लॉक का पॉजिटिव एज आ गया है, और जब मेरा राइट वाला जो पिन है दैट उसको बोलते हैं ये वाला पिन, इट्स शिफ्ट राइट सीरियल इनपुट, दैट इज पिन नंबर 2। तो वो जब होगा हाई,
तो उस टाइम पे मेरे पैरेलल इनपुट्स कुछ भी वो हो जाते डोंट केयर, और मेरा क्यूए के अंदर एच चले जाता, मतलब क्या हो गया, वो शिफ्ट राइट हो गया। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे सेम चीज है, क्लियर इक्वल टू एच, मोड इक्वल टू 01, क्लॉक हैज कम अगेन। अगर आपने पिन नंबर 2 पे अगर 0 दिया है तो 0 अंदर चले जाता है। सेम चीज रिपीट होती है थर्ड लास्ट एंड सेकंड लास्ट में। क्लियर इक्वल टू 1, मोड इक्वल टू 10 हो गए, देखा अभी। तो आपने देखेंगे कि यहाँ पे पहले 01 के 2 रोज हैं और 10 के 2 रोज हैं। तो जब 10 होता है क्लॉक का पॉजिटिव आ जाता है। अगर मैंने पिन नंबर अभी लेफ्ट है ना, तो पिन नंबर 7 क्या है, शिफ्ट लेफ्ट सीरियल इनपुट। तो पिन नंबर 7 पे अगर मैंने लॉजिक 1 दिया तो पैरेलल इनपुट्स डोंट केयर है, और आपके क्यूडी की तरफ से 1 एंटर होता है, तो इट इज शिफ्ट राइट, इट इज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। देखा देखा आपने। तो क्यूडी जो है ना, क्यूडी से लेके जो बिट्स है वो क्यूडी टू क्यूसी जाते हैं, क्यूसी टू क्यूबी जाते हैं। तो व्हेनेवर द बिट्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम क्यूडी टू क्यूसी, QC to QB, QB to QA, it is shift left operation. Similarly, if the bits are shifting from QA to QB, QB to QC, and QC to QD, it is shift right operation. Okay, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो clear equal to 1, modes equal to 10, clock is equal to rising edge, and then when 0 is put at the left, pin number 7, we see that logic 0, that is the bit 0, is entering from QD side. Similarly, last row, clear equal to 1 as usual, mode equal to, acha, yeah, so second last, third last, yeah. So second last row is clear equal to 1, mode equal to 10, clock equal to rising edge. सीरियल में 1 के बदले 0 है, तो 0 एंटर होता है क्यूडी की तरफ से, ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखेंगे क्लियर पिन इज इक्वल टू 1, मोड इक्वल टू 00। ओके, तो अभी तक 00 आया नहीं था, तो 00 में क्या होता है, क्लॉक हो जाता है डोंट केयर, राइट लेफ्ट सीरियल इनपुट, पैरेलल इनपुट ऑल डोंट केयर। और आप देखेंगे कि रो नंबर 2 और रो नंबर 8 आर सेम। तो मैंने बताया था आपको कि QA 0, QB 0, QC 0, QD 0, they indicate that the output is remembering itself, it is a no change, or it is also called as hold state. तो hold state, memory mode और नो चेंज आर वन एंड द सेम। तो हम देखते हैं कि हमारा जो आईसी है उसके जो आउटपुट्स हैं पिन नंबर 12, 13, 14 एंड 15, दे रिमेंबर देमसेल्व्स व्हेन क्लियर इक्वल टू 1, और तुम्हारा क्लॉक जो है वो लो मोड पे चल रहा है। एट द सेम टाइम जब हमारे मोड कंट्रोल इनपुट 00 है, तो व्हेन क्लॉक इक्वल टू लो, दैट मीन्स क्लॉक के ऊपर कोई भी एज नहीं आया है, as well as when mode equal to 00. So when clock is equal to low and mode equal to 00, in both these cases my output remembers itself. I don't think so you need any more explanation than this. तो फंक्शन टेबल के लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी था, वो मैंने दे दिया आपको। मैंने 194 का पिन आउट डायग्राम भी बहुत डिटेल में समझा दिया। तो मुझे लगता है कि आप लोग अभी असाइनमेंट आराम से अपने आप से कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे वही बताया मैंने, VCC ग्राउंड के 2 पिंस, क्लॉक इनपुट का एक, क्लियर का एक, 4 आउटपुट है, MSB है। अच्छा, तो इसके अंदर एक आपको देखना है ध्यान से कि QA जो है वो MSB और QD LSB है। पैरेलल लोडिंग के 4 पिंस, मोड कंट्रोल के 2 पिंस, शिफ्ट राइट सीरियल इनपुट पिन नंबर 2 के ऊपर है वो 1 पिन, और शिफ्ट लेफ्ट सीरियल इनपुट पिन नंबर 7 1 पिन। ओके, so this was all from my side. It was a one-way communication. I am stopping the recording now. It will become